Hello dear students, welcome to the class today. Children, as you know, we are carrying on with the syllabus in social science. We have completed the first chapter in history and the first chapter in geography. So here I am with the first chapter in political science. This is the book where we have not started yet. So I'm starting with the first chapter, which is talking about equality. Children, what happens is कि हम equality की बात करते हैं. When we talk about equality, a very nice story is given here in your book, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी at the end of the chapter when I will be finishing giving an introduction. So please understand what we need to mention here. हमको जो चीज समझनी है कि when we are talking of equality on paper, काफी सारी चीजें जो हैं हम बोलने के लिए तो बोल देते हैं कि इक्वल है, इक्वालिटी है, बट इन प्रैक्टिस जब सच्चाई की बात आती है then somewhere equality is missing. Okay, so when the chapter is starting, there you will be finding some photographs that are there where Manjeet Kaur is there, who is a teacher, Teja Singh is there, who is a trader, Girish Rao is there, who is a student, Kanta Devi is a domestic worker, and Sujata Kumar is a domestic worker, means the maids who come to our house to clean our house, घर की साफ सफाई करने के लिए जो आंटीज आती हैं, these are some of them. Now what happened? Election हो रहा है. On election day, Kanta is there and her friend Sujata. They are waiting. वो वेट कर रहे हैं किस चीज के लिए? दे आर वेटिंग टू गिव देयर वोट, कास्ट देयर वोट. वोट आप देते नहीं हो, यू कास्ट योर वोट. सो दे वर स्टैंडिंग टू कास्ट देयर वोट्स. देन सुजाता इज टेलिंग, Kanta is telling Sujata, isn't it good we can all vote as equal citizens of our country? अपने कंट्री के इक्वल सिटीजन्स की तरह ही अगर हम वोट कर पाए तो कितना अच्छा हो जाएगा. इवन जैन साहिब, मतलब कि शी सी की द हायर सोसाइटी पीपल आर ऑल्सो स्टैंडिंग इन द सेम लाइन, आर स्टैंडिंग इन लाइन विद अस. तो उन्होंने कहा कि ये जो जैन साहब है ये भी तो इसी लाइन में लगे हुए हैं, ही इज ऑल्सो स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस. तो हाउ कम इट इज हैपनिंग कि when we are talking of equality, जैन साहब भी आए हैं वोट करने के लिए, वो भी इसी लाइन में लगे हुए हैं, उसी लाइन में मुझे भी लगाया गया है. तो इसमें लोगों का पीपल्स पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस. कहने की बात है कि एक ही लाइन में लगे हैं, but then when in reality when equality would be talked about, तो जैन साहब भी हो सकता है उतना इक्वालिटी प्रैक्टिस न कर पाए. पीपल्स पार्टिसिपेशन, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इक्वालिटी, जस्टिस. अब इक्वालिटी क्या है? इट इज जस्ट अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. इक्वालिटी में डेमोक्रेसी का वन मेजर पॉइंट इज देयर एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग. हर एक चीज, you know, equality, talking about equality, practicing equality are two different things. So democracy is there, equality has to be there and influences all aspects of its functioning. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे ना, we will be reading about equality, what it is and why it is important. What is equality and why is it important? Okay, both the things we will be understanding. जब हम दोनों चीजें समझेंगे तो वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, तो यही चीज हमको कांता की स्टोरी से समझनी है. We will be understanding it with the help of Kanta's story. Yes, Kanta's story we need to discuss, children, where
equal right to vote is to be given to her, how this equality will be practiced, and what are the major things that needs to be kept in mind while we are talking about. तो जब तक हम कांता की स्टोरी को नहीं समझेंगे ना, तब तक बाकी की चीजें हमको समझ में नहीं आएंगी. वी वोंट बी अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग. सो लेट्स अंडरस्टैंड कांताज स्टोरी. पहले कांता की स्टोरी समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की चीजें करेंगे. गॉट इट चिल्ड्रन? लेट्स सी इट इन द बुक इटसेल्फ. Students, just now the chapter that we have started, equality. Political science on equality. We are talking about the first chapter in Pol Science. Children, we have already discussed about the history first chapter, and I think you all were very interested in geography first chapter, right? Yes. Geography first chapter was talking about environment, a very short and sweet chapter. It finished in just 2 classes, so I think you might be enjoying. Actually, this is also the chapter that you would be enjoying. Why? Because children, this chapter is in the form of a story. This complete chapter, jahan pe we will be talking about equality. How equality is practiced in the society. How are the people living equally? What are the major processes? All these things we will be discussing in detail. We are discussing it in the way of a story, and a story is in the form of comic style. आपने बहुत सारे कॉमिक्स पढ़े होंगे ना. यू माइट हैव स्टडीड अबाउट फैंटम एंड पिंकी एंड चचा चौधरी. यस, so it is in that form, but this is a bit serious story where we will be understanding the story of Kanta, right? We will be discussing right now the story of Kanta. अब ये कांता कौन है? I have given you a brief introduction where I have talked about first thing where we are talking about equality is the voting process. जब वोट डलते हैं, when the votes are being put, at that time everybody stands in the same line. Can you believe me, children, that when the Prime Minister also goes for voting, so if a line, the Prime Minister will stand after that line. He will not cross the line. Believe me, children, that's the reality. एक बार इसी तरह, बहुत पहले की बात है, 10 years back, like प्राइम मिनिस्टर, हाँ, नरेंद्र मोदी हैड ओनली गॉन फॉर वोटिंग इन सम बूथ. तो वहाँ ऑलरेडी 10-12 लोग लाइन में लगे हुए थे. सो द सिक्योरिटी गार्ड सेड कि हट जाइए, प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग. प्राइम मिनिस्टर इमीडिएटली केम एंड सेड नो नो नो, दिस इज इलेक्शन and everybody is in the same platform right now. When I have come for voting, I am just a citizen of India. मैं इस समय प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ. प्राइम मिनिस्टर मैं बाद में बनूंगा अगर इलेक्शन में जीत जाते हैं तो. दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ elections. That's the greatness of Indian democracy, that during the time of voting every same line. यही चीज यहाँ पे दिखाई जा रही है. तेजा सिंह is a teacher, a trader. Manjeet Kaur is a teacher. Girish Rao is a student. And children, just see, हम जिनकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे, they are कांता देवी and सुजाता कुमारी. Both of them are domestic workers. Maids हैं, घर घर जाके काम करते हैं. अब कहानी शुरू होती है. Now द स्टोरी स्टार्ट्स. कहाँ से शुरू होती है? इलेक्शन का दिन है. इलेक्शन डे. कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता, दे बोथ आर वर्किंग, वेटिंग देयर, लाइन में लग के टू कास्ट देयर वोट्स. इनको भी वोट डालना है. अब ये लोग एक ही लाइन में खड़े होके अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं. नाउ कांता इज टेलिंग टू हर फ्रेंड, isn't it good, Suja means Sujata, कि we can all vote as equal citizens of our country. Just now that I was saying,
दैट प्राइम मिनिस्टर हैज कम फॉर वोटिंग, लेकिन हुई थी वो भी लाइन में लग गए. दिस इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वालिटी, बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इक्वालिटी. अगर सिक्योरिटी गार्ड्स लोगों को हटाते भी तो लोग कुछ कह नहीं सकते थे. दे वुडंट हैव सेड एनीथिंग. वो कहते हाँ प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग. बट लुक एट द ग्रेटनेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, दैट ही सेड नो, आई विल बी ऑल्सो स्टैंडिंग इन द सेम लाइन. तो शी इज टेलिंग, यही चीज़ कांता को बहुत अच्छी लगी कि देखो एवरीबडी is standing in the same line. Isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizens of our country? Now she's saying ki Jain Sahib, he might be, she's working at Jain Sahib's house. Jain Sahib is her master, जिनके घर में जाके कांता काम कर रही हैं. तो the Sujata is also telling yes. Now स्टैंडिंग इन द लाइन. अब कांता का टर्न आ जाता है. कांता अंदर वोट करने के लिए जाती है. व्हेन यू विल बी वोटिंग, तो देयर इज वन सिटिंग जो कि आपको पहले आपका नाम चेक करेंगे लिस्ट में, इन द वोटर्स लिस्ट योर नेम इज देयर और नॉट. देन अनदर पर्सन इज सिटिंग देयर जो कि इंक का मार्क लगाएंगे आपके हाथ पे. दैट, अच्छा ये इंक का मार्क इसलिए लगता है बिकॉज यू आर द पर्सन हु हैव ऑलरेडी वोटेड वंस. आप दोबारा जाके वोट नहीं डाल सकते हैं. तो ink mark is there. It's your turn now. So she's telling, I will vote for the candidate who has promised to bring pipe water to our area. अब देखो, please understand that she had gone for voting and अंदर जाके भी she is thinking about voting to that person जो उनके लिए पानी का अरेंजमेंट करेंगे. मतलब मेनी लीडर्स का ना, बहुत सारे नेता आते हैं जब इलेक्शंस का टाइम होगा ना, सो मेनी लीडर्स विल कम टू योर हाउस, हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे हाँ हम आपके लिए रोड्स बना देंगे, अरे लाइट आपको नहीं मिल रही है, हम बिजली की भी व्यवस्था कर देंगे, एक बार हमारे ऊपर विश्वास करके देखिए. दिस काइंड ऑफ डायलॉग्स द लीडर्स से, जो नेता परेता होते हैं ना, वो इसी तरह के डायलॉग्स मारते हैं. गॉट इट? सो ही विल बी कमिंग एंड सेइंग ऑल दीज थिंग्स. सो आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया. हमारे एरिया में जो पाइप का पानी लेके आएगा उसी को मैं वोट करूँगी. शी इज़ टेलिंग दैट. और देखो अंदर जाके इन्होंने वोटिंग किया. नाउ another people who are standing here in a line is Abdul Rahman, who is a artisan. Artisan means जो बुनाई कढ़ाई का काम करते हैं. Then Shabnam Bano, she is a housewife. Gracie Lying, she is a consultant. Consultant means लोग आके किसी इशू पे कुछ important discussions करते हैं, तो she is a consultant. Okay? Isaac Lalang, he is a government officer. Gracie Lalang and Isaac Lalang are related to each other. Then there is Ruxana Mirza, she is a media person. Then there is Yogi Raj, who is unemployed. Ashok Jain is an industrialist. अब लाइन लगी हुई है, वोटिंग के लिए लाइन लगी हुई है, लंबी वाली लाइन लगी हुई है. पहले तो सबने वोटिंग कर दी. इसके बाद क्या हुआ? Just see, it is mentioned here. Afterwards, Jain Sahab is going. The master is going. Yes, Namaste Sahab. तो he says कि okay, we'll see you later, कांता बाद में मुलाकात होती है. वो कार में बैठ के चले गए. And she is saying yes, Namaste Sahab. ठीक है? Now Kanta and Sujata are talking. Now Kanta is telling, गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर. गुड़िया इसकी बेटी का नाम है. गुड़िया को बहुत बीमारी, वो बहुत दिन से फीवर आ रहा है. आई हैव टू टेक हर टू दी हॉस्पिटल. गॉट इट? इसकी बेटी को फीवर है और उसको ये हॉस्पिटल लेके जाना चाहते हैं. बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क इन साहिब्स हाउस फर्स्ट. मतलब पहले मालिक के घर का काम मेरे को ख़त्म करना है, उसके बाद गुड़िया को हॉस्पिटल लेके जाना है. एंड आस्क फॉर सम एडवांस. भाई डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, दवाई खरीदनी है,
कुछ इलाज के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो शी इज़ टेलिंग कि पहले मालिक के यहाँ जाती हूँ काम करके, उसके बाद कुछ एडवांस मनी आई विल बी आस्किंग। नाउ घर जाती है तो वो देखती है हियर हैव सम ऑफ दिस, वो मतलब गर्म पानी दे रही है उसको, एंड यू विल फील बेटर। बेटी की तबीयत ख़राब है, बिटिया को वो कह रही है थोड़ा सा पानी पी लो बेटा, थोड़ा सा ठीक लगने लगेगा, यू विल फील बेटर, एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग विल गो टू द हॉस्पिटल टुडे। ओके, कि बेटा अभी ये थोड़ा सा चाय है या पानी है कुछ होगा, कह रही है उसको पी लो, शाम को आके डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। गॉट इट, जैसे कि मदर्स कहते हैं, एंड शी इज़ अ वर्किंग वूमन। सो नाउ व्हाट हैपन्स, इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन। अक्सर ऐसा हो जाता है ना कि गुड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। अब ये गुड़िया की स्टोरी चल रही है। गुड़िया ऑफन फेल्स इल, ये इसकी माँ सोच रही है, सुजाता इज थिंकिंग, सॉरी कांता इज थिंकिंग कि ये क्या है। Most of the time she falls ill, and the basti is never cleaned. You know, dirtiness is the biggest problem. गंदगी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर गंदगी का इलाज नहीं हो रहा है तो लोग ऐसे ही बीमार पड़ते रहेंगे, कोई उपाय नहीं हो पाएगा। That is one thing that needs to be understood, and it is very important to understand that we need to keep our surroundings clean. अपने आसपास की जगह को हमको साफ करके रखना है, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। बस्ती कभी भी साफ नहीं होती है, द बस्ती इज क्लीन्ड, एंड गुड़िया ऑलवेज फॉल्स इल, अक्सर गुड़िया जो है वो बीमार पड़ जाती है। तो अब इसको लग रहा है कि बस्ती में थोड़ी सफाई भी होनी चाहिए, एंड देयर शुड बी सम पीपल हु कैन टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लीनिंग द बस्ती, मतलब जहाँ पे वो रहती है। नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन शी इज गोइंग टू द मास्टर्स हाउस, जहाँ वो काम करती है, वहाँ जब वो पोछा दे रही है, सेइंग मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपर्ली। वो कह रही है देखो सफाई तो कर रहे हो, लेकिन ये देख लेना कोने कोने में सफाई होनी चाहिए, ठीक है। क्लीन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस। द मास्टर्स हु आर देयर, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, ये मास्टर्स की ज़िंदगी अपने तरीके से चल रही है, एंड द मास्टर इज सेइंग मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपर्ली। कोने कोने को साफ करना बहुत ज़रूरी है। Now the lady जिनके घर में कांता काम करती है, she saying here's your advance कांता, but don't make a habit of it. वो कह रही है कांता आपने पैसे मांगे थे, आपकी बेटी की तबीयत खराब है, it's not mentioned here, but then the master who is there is quite considerate. The lady saying कि कांता पैसे ले लो लेकिन बार बार एडवांस मत मांगो। And what happens, and that's the problem with the poor people, dear students. Whenever they need the money, they come and ask it from the master. मालिक से वो पैसे ले लेते हैं, and at the end of the day, at the end of the month, सारा पैसा तो उन्होंने ले लिया। फिर जब मंथली पैसे देने की बात आती है तो फिर वो उनके पास कोई पैसा ही नहीं बचता। सपोज अ पर्सन इज वर्किंग एट माई हाउस 1000 रुपीज़ पे, एवरी टाइम द पर्सन विल कम एंड टेक, कभी कहेंगे 100 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो, 400 रुपये दे दो। देर इज़ अ हैबिट ऑफ आस्किंग फॉर मनी। सो द लेडी इज सेइंग डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। तो सो द कांता इज सेइंग नो मैम आई डोंट, मतलब वो पैसे लेना नहीं चाहती है, लेकिन उस दिन शी हैज़ टू टेक मनी। फिर शाम को वो वहाँ जाती है अपनी बेटी को, जैसा उसने कहा था कि शी विल बी टेकिंग हर डॉक्टर टू दी, शी विल बी टेकिंग हर डॉटर टू दी डॉक्टर। डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, उसको फीवर आ रहा है। जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, बेटा कुछ मिनट और इंतज़ार कर लो। जेन मैडम एंड जेन साहब वे स्टैंड इन लाइन टू वोट, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। वो कह रही वोटिंग की लाइन में उसके साहब और मेम साहब जिनके घर में वो काम करती है, जेन साहब जो हैं,
जिनके घर में कांता काम करती है, शी इज सेइंग कि वोटिंग की लाइन में तो लाइन में लग गए, लेकिन जब डॉक्टर की लाइन होती है तो सबसे पहला प्रेफरेंस, द फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू जैन साहब। पैसे वाले हैं ना, दे पे अमाउंट ऑफ मनी and people cross that place and go and do whatever तुरंत उनके बच्चों का इलाज हो जाता है। एंड बिकॉज शी इज़ पुअर, ये एक बहुत ही गरीब औरत है, तो इसको लंबी लाइन में लगना पड़ता है। नाउ शी इज़ थिंकिंग वोटिंग की लाइन में इक्वालिटी है एंड यहाँ पे मेडिकल हेल्प के लिए इक्वालिटी नहीं है। तो ये दिस वॉज द स्टोरी ऑफ कांता। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सी how Kanta has been feeling. ये देखो, some questions are there. Now when you think about these questions, do you think Kanta has enough reason to doubt whether she really is equal? क्या equality सच में practice हो रही है या खाली बातों ही बातों में equality है? People are saying कि everybody is equal, लेकिन in reality equality की practice है। तो आपकी जो स्टोरी जस्ट नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड, यू हैव टू टेल 3 रीजंस, 3 कारण बताना है फ्रॉम द स्टोरी दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस। ऐसा क्या कारण था कि उसको लग रहा था कि इक्वालिटी नहीं है, बहुत इनइक्वालिटी है। विच प्लेसेस शी फेल्ट दैट शी इज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली। ऑन पेपर्स इक्वालिटी है, लेकिन इन रियलिटी इक्वालिटी नहीं है। ये चीज़ कांता को बार बार लग रही थी। व्हाट आर द थिंग्स, इसमें क्या चीज़ें हैं जो देख के आप भी ऐसा कह सकते हो। तो अब चैप्टर शुरू होता है वेयर इट इज सेइंग इक्वल राइट टू वोट। कांता की स्टोरी हमने पढ़ी, just see it is mentioned here. The story above begins with Kanta standing in line to cast her vote. अब वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विथ हर, हमने सब लोगों के बारे में देखा। मिस्टर लेजली देयर एंड आई मीन लुक एट द लॉन्ग लाइन दैट इज देयर। कांता रिकॉग्नाइजेस हर एम्प्लॉयर, जो उनके जिनके घर में वो काम करती है उनको वो पहचान लेती। शी रिकॉग्नाइजेस, अरे जैन साहब इज ऑल्सो हियर, एंड अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नेबर। अशोक जैन एंड छोटे लाल। Democratic country, we are a democratic country ना, India is a democratic country, you know it very well. All adults, जितने भी adult members हैं, irrespective of what religion they belong to, religion का कोई मतलब नहीं है। How much educated they are, education से भी कोई मतलब नहीं है। What caste they are or whether they are rich or poor, कुछ भी नहीं देखा जाता है वोटिंग लाइन में। When everybody is standing at that time, everybody is equal. Very nicely, equality is practiced, dear student. And 6th class में you have read this kind of equality that is practiced in the country of the world, जहाँ जहाँ पे भी democracy है, there this thing is very well practiced and it is called as universal adult franchise. Universal adult, सारे adults मिलके voting करते हैं। and the idea of universal adult franchise, क्यों ऐसा है? Why there is universal adult franchise? Universal adult franchise is there so that equality is practiced. Okay, it is that every adult in the country must get equality and must get the right to vote, irrespective of their wealth. पैसा वैसा कितना है, खजाना कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, it hardly matters. Okay, कांता को बहुत अच्छा लग रहा है on for voting ना। जिस लाइन में वो खड़ी है उसी लाइन में उसके साहिब भी खड़े हैं। साहिब मीन्स जैन साहिब, जिनके घर में वो काम करती है। शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज 1 वोट। द काइंड ऑफ पावर दैट हर मास्टर हैज, जैन साहिब को जितना पावर मिला हुआ है उतना ही पावर कांता हैज ऑल्सो गॉट। दिस इज अ वेरी एनकरेजिंग थिंग फॉर कांता। गॉट इट? लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, एज द डे गोज बाय, कांता स्टार्ट्स फीलिंग कि इक्वालिटी कहने के लिए इक्वालिटी है,
बट इन रियलिटी इक्वालिटी इज नॉट प्रैक्टिस्ड. सिर्फ लोग बोल देते हैं लेकिन इक्वालिटी की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. एंड कांता इज बिकमिंग वेरी अनश्योर. कांता को ऐसा क्यों लग रहा है? प्लीज सी, इट इज मेंशन्ड हियर. व्हाट इज इट दैट मेक्स कांता अनश्योर ऑफ हर इक्वालिटी? शी फील्स कि लोग कहते तो हैं इक्वालिटी, बट इन प्रैक्टिस देयर इज नो इक्वालिटी. शी लिव्स इन अ स्लम. सबसे पहले तो वो जहाँ पे स्लम एरिया, जस्ट बिहाइंड आवर हाउस इज अ ड्रेन, नाली. यस, वेरी पुअर, वेरी डर्टी ड्रेन. एंड बार बार बिकॉज ऑफ दैट ड्रेन क्या होता है, द डॉटर बिकम्स सिक. एक गंदा पानी वहाँ बहता है और ये गंदे पानी की स्मेल से, उसकी गंदगी से इनकी बेटी हमेशा बीमार पड़ जाती है. शी कैनॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम हर वर्क. काम से कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है इसको, बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी. अपने एम्प्लॉयर से इनको अक्सर पैसे लेने पड़ते हैं टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर. डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाना है, पैसे लेने पड़ते हैं, छुट्टी लेनी पड़ती है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम शी हैज़ टू टेक एडवांस. एंड द मास्टर इज नॉट वेरी हैप्पी कि ले लो पैसे तो ले लो, लेकिन डोंट आस्क फॉर इट ऑल द टाइम. द मास्टर इज गिविंग हर द मनी, but the master is bit annoyed. Master is not very happy with the money, and she is her job as a domestic help. घर में काम करने वाली औरत है वो. टायर्स, बहुत थक जाती होगी, isn't it? She might be getting very tired. And finally जब दिन ख़त्म होता है, her day ends. She ends her day again standing on a long line. One day she has stood on a long line. एक बड़े से क्यू में खड़े होके अपनी बेटी को इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, थोड़े बहुत इलाज करवाए, बट स्टिल शी इज़ इनटू अ वेरी बैड पोजीशन. मोस्ट ऑफ द पीपल हु स्टैंड इन द क्यू, जब भी आप कोई लंबी लाइन देखोगे ना, always remember that these are the people who are mostly poor. अक्सर गरीब लोग ही ऐसी लाइन में लगते हैं. जिनके पास पैसे होते हैं ना, वो तो दे समटाइम समहाउ और दी अदर दे देयर थिंग्स. अब इक्वालिटी की और भी चीज़ें देखो. यहाँ पे ना कुछ वो दिया हुआ है, सब मैट्रीमोनियल्स. संडे वनडे का पेपर देखोगे तो उसमें शादी के लिए आता ना, वर चाहिए, वधू चाहिए. या रिमेंबर the Sunday paper that is there, the newspaper, Dainik Jagran ho, or the Times of India is there, or the Hindustan Times is there. Whenever you will see, you will find some of these kind of news there, which is talking about alliance invited for 32 years, fair beautiful girl. मतलब एक आदमी को एक लड़की चाहिए, and the person is 32 years old, who is working in an IT company, Mumbai. Just see, Mumbai का IT company में he's working, and he's Bachelor of Engineering, MBA boy, abroad from IT industry. मतलब कि बाहर से he has come, and he was working abroad, बाहर की country में वो काम करते थे. Now he is looking for a fair match. एक अच्छी सी वधू की तलाश है इंडिया में. इक्वालिटी है, but just see, everybody wants a good girl for marriage, isn't it? Yes. Then you have a professor qualified, full tall girl, बड़ी लंबी लड़की है. For Gupta boy, एक गुप्ता जी का लड़का है, who is 28 and 6 inches, 28 years and 6 feet. CA वर्किंग MNC टेक्सास USA में ये बंदा काम कर रहा है. ठीक है, ब्यूटीफुल टॉल गर्ल चाहिए, क्वालिफाइड ब्यूटीफुल टॉल गर्ल. इक्वालिटी है, लेकिन गर्ल्स के रिक्वायरमेंट के लिए लुक एट द इक्वालिटी. गॉट इट? देन तमिल ब्राह्मण अयंगर ग्रूम इज देयर, अयंगर बॉय इज देयर. उसके लिए लड़की चाहिए. द बॉय इज 1981 born and he is Naithruva Kashyap.
हाँ, नाइथ्रुवा मतलब दैट इज द कास्ट बार. सो गोथराम स्वाति नक्षत्र में पैदा हुआ है. ही इज तमिल ब्राह्मण. अयंगर ग्रूम इज देयर. ठीक है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है. हम बातें तो इक्वालिटी की कर रहे हैं, बट सी हाउ आर वी प्रैक्टिसिंग इक्वालिटी. अपने ही तरीके के लोग चाहिए होते हैं, अपने ही लेवल के लोग चाहिए होते हैं. उससे अलग हम किसी के साथ मिक्सअप करने के लिए तैयार नहीं हैं. Yeah, lot of more things are there. We will be discussing further in the chapter. For now, I am finishing it here. We will be discussing further in the next class. Till then, children, thank you so much and all the best to you.